Okay, so we are live Yes. and let's start the session. Okay, so Assalamu alaikum everyone. It's Zeba Kaleem here from Isiano Technologies, and it is our fourth webinar session. And today our scheduled session is about on a road to becoming a product manager. And we are hosting Faiza Yusuf today. She is working with me at Asiano Technologies as a senior product manager. And we have prepared a series of questions for her so that she can help with the answers. And the people who are willing to make their career in product management can learn from her experience as well. So thank you so much, Faiza, for giving your time to us. And please, if you want to introduce yourself, please go ahead. Sure. Thank you so much, Zeba. My name is Faiza Yusuf, and I've been working in the tech for the past 10 years. And since the start of this year, I've been working with you guys at Asiano Technologies. And my role is mostly working with different products that the company has been building, and some new products that will be launched soon. So yeah, that's about it. You're muted. Okay, so uh, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की हम तरफ चलते हैं इसमें सो फैजा what do you think what is the product management and how is it different is from the project management in your opinion. राइट, गुड क्वेश्चन. सो मैंने अपना करियर शुरू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से ही, मतलब शुरू तो नहीं, बट आई स्टार्टेड फ्रॉम क्वालिटी इंजीनियरिंग. Then I transitioned into project management, and then from there I transitioned into product management. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो एक प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट है जिसके अंदर आपके पास एक प्रोजेक्ट है जो एक लिमिटेड टाइमलाइन का है, लिमिटेड बजट का है, एंड यू आर मैनेजिंग इट बाय अलाइनिंग रिसोर्सेज. तो जो आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सक्सेसफुल डिलीवरी ऑफ अ प्रोजेक्ट है. आपके पास एक सेट नंबर ऑफ रिसोर्सेज होती हैं, एंड अगेन अब वो प्रोजेक्ट की सक्सेसफुल डिलीवरी आपका काम है, लेकिन वो प्रोजेक्ट मार्केट में जाके कैसा परफॉर्म करा है या आपके क्लाइंट के एंड पे वो कैसा परफॉर्म करा है, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर जॉब. लेकिन व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्ट मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली इट्स अबाउट achieving the objectives that you have set for a product. और उसके अंदर of course you are not delivering small projects to different customers. You are working on products that most of the times you are developing yourself and maintaining yourself. So more strategy, more communication, more um, कहना चाहिए उसको कि ज़्यादा जो है वो रिसर्च बेस्ड काम है इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट. एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज मोस्टली अबाउट अलाइनिंग रिसोर्सेज एंड वर्किंग विद टीम टू deliver something. So that's how I define it. I think Zeba has been disconnected for some reason, internet issues maybe. She has sent me a list of questions already, so maybe we can. I can ask myself questions and we can just go through with it. So Zeba का second question ये था कि if someone wants to um, start their career in product management, so कौन सी basic skills हैं जो required हैं. So like every other tech profession, आपके पास कुछ set of hard skills होती हैं और कुछ set of soft skills होती हैं. हार्ड स्किल्स का मतलब है कुछ टेक्निकल स्किल्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड हैं, एंड सॉफ्ट स्किल्स में मोस्ट ऑफ द टाइम कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन और इस तरह की स्किल्स होती हैं. So एक प्रोडक्ट मैनेजमेंट मैनेजर के लिए, बिकॉज प्रोडक्ट मैनेजमेंट इज लाइज एट द इंटरसेक्शन ऑफ बिजनेस, टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन. So you need to have basic competencies in technology, basic competencies in design and basic competencies in business. So जो basic business knowledge है कि एक business कैसे function करता है वो बहुत ज़रूरी है. So if you don't have that, then of course it will become difficult for you to survive, because most products are in the market to generate business and navigate the business space. Then of course आपको टेक्नोलॉजी की नो हाउ होनी चाहिए, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपके पास एनालिसिस और स्ट्रैटेजी की का स्किल सेट होना चाहिए. यू मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन researching things and analyzing things. You must be really good at communicating things and organizing information. So ये वो skill set है जो mainly required होता है when we are talking about product managers. Then हमारे पास
जो एक और चीज़ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे टूल्स हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बारे में भी मुझे ज़ेबा ने एक क्वेश्चन भेजा है। आई वुड लव टू टेल यू गाइज अबाउट टूल्स दैट वी यूज़, लेकिन उन टूल्स की भी जो है वो वर्किंग नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। और चाहे उसके अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टूल्स हों, प्रोडक्ट मार्केटिंग के टूल्स हों, CRMs हों या रोड मैपिंग के टूल्स हों, उनके बारे में इंफॉर्मेशन एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपको होनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो ज़ेबा ने मुझे भेजा है वो है कि हाउ डू आई नो इफ़ अ प्रोडक्ट इज़ वेल डिज़ाइंड। सो ये थोड़ा सा ट्रिकी है in the sense कि what do you call well designed, how do you define well designed? So in my opinion, a product that has been made with a proper thought process should be frictionless and should be really intuitive. So whoever your target audience are should take a look at the application, and they should know that why this application is there and how they can use it. And it should be intuitive, so they do not need training or support or any kind of formal informal information or formal informal tutorial to use the product. So it should be really intuitive, and of course whatever the problem your product is solving, it should be able to solve it. So for example, we talk about banking solutions, online banking solutions. I do not have any experience in fintech companies or working with fintech products, even though Asiano has been known to work to develop. They have developed Jazz Cash's application. I don't work with that team, so I can. When we talk about solving a problem, let me give you an example of something that I'm not very good at, but at the same time, the example is really good. So we talk about an online banking solution, a solution that basically gives you the ability to do banking without going to a branch. In a lot of the services that are available, or a lot of features or capabilities that are available on that online banking system, one of them would be to send money to people. So this is a basic feature where you're transferring funds to someone. Now, for a moment, just think about Venmo. What does Venmo do? You can send money to people via Venmo. It does not have the whole feature set of an online banking solution, but at the same time, it solves one customer problem, that customers want to send money to other people, and they solve it really well. So this is what you're looking for when you're talking about product, that you need to be able to solve a core problem, and you need to be able to solve that core problem really well, so that people know that where should they go when they are looking for a solution of that specific problem. And then again, it should be simple, it should be visually appealing. A lot of the time people describe a good or a Okay. well designed product as a minimalistic product. I would not define it as a minimalistic product. The reason being, we want to build accessibility into it. So minimalism is also relative when it comes to product design. So we have to make sure that whoever our target audience is, the product is really optimized for that target audience. Welcome back, Zeba. We are on. Sorry. No problem at all. So I just answered your question about how do you know if a product is well designed. We can go to the. Okay, Faiza. Hmm. Okay, yes. So let me get to on my next question, which is आपके ख्याल से क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड होना चाहिए प्रोडक्ट मैनेजमेंट की तरफ स्टार्ट लेने के लिए? No, we are done with this, and we are done with the next one as well. We have to go to the. Next one is okay. So next question is how do you know if a product is well designed? I've already answered that. Next one. Okay. What does your average day look like? Okay. So what do I do in a day when I'm at work, or when I'm working with my clients or my team? Most of my day goes into working with some basic product artifacts. So I work with a lot of backlogs. We have roadmaps. We have our sprint boards that I'm working with. Then of course a lot of researching, reading and writing goes into as well. We have a lot of team meetings. We also a lot of my time also goes into interacting with
with the customers. So yeah, so interacting with the customers. So for example, right now we are in the process of um, launching a product, and we are planning to launch it in the next few weeks. So most of my time basically goes with talking to the users and asking them to take a look at the application and just give me feedback, and just being empathetic and listening to them to make sure that what exactly are their problems and how we can improve whatever we have built. So yeah, a lot of communication, a lot of meetings, a lot of reading, a lot of writing, a lot of board management goes into that. And sometimes I'm also testing the applications myself with the testing team to ensure that whatever we have made is, you know, worth delivering. Up mute him. So what are the main tools that you are working with? Main tools that we are working with. Acha. So it depends on the product that I'm working on. So right now I'm working on multiple products. हर प्रोडक्ट की टीम का एक अलग टूल सेट होता है जो वो यूज़ कर रहे होते हैं, जिसके अंदर उनके पास अलग तरह के टूल्स होते हैं. मेनली जो टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं, एक तो उसके अंदर आपके पास एनालिटिक्स से रिलेटेड टूल्स होते हैं. फेसबुक एनालिटिक्स है आपके पास, गूगल एनालिटिक्स है जिसमें आप यूज़र की ट्रैकिंग और बिहेवियर एनालिसिस कर रहे होते हैं, रोड मैपिंग के सॉल्यूशंस यूज़ कर रहे होते हैं. कस्टमर्स के सर्वे के लिए हम कुछ टूल्स यूज़ करते हैं, सर्वे मंकी है, गूगल फॉर्म्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं. रोड मैपिंग के लिए प्रोडक्ट प्लान है या जीरा का रोड मैप है वो यूज़ कर रहे हैं. कम्युनिकेशन के टूल्स हैं हमारे पास. सो हम यूजुअली माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, एक मेरी टीम वो यूज़ कर रही होती है, दूसरी टीम जो है वो स्लैक यूज़ कर रही है. देन हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टूल्स हैं. सो आई हैव I'm right now I have 3 different products on three different tools. एक प्रोडक्ट जीरा के ऊपर चल रही है, एक प्रोडक्ट हमारी जो एसियानो की प्रोडक्ट्स हैं वो Azure DevOps के ऊपर चल रही हैं. बाकी जो दूसरे मेरे प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे असाना के ऊपर चल रहे हैं. सो ये कुछ टूल्स हैं. देन वी ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ फ्लो चार्टिंग, माइंड मैपिंग, यूजर स्टोरी के बिल्डिंग के बहुत सारे टूल्स हैं, मैपिंग के टूल्स हैं. Mind mapping के लिए a lot of times I am just doing it on paper, but I have used some tools as well. आपके पास Xmind is a very good freeware tool that I think is very useful. आप उसका desktop version डाल लें and you know you can use it to build mind maps. So ये काफ़ी सारे tools हैं depending upon कि आप क्या use कर रहे हैं. अगर आप bug reporting के लिए कोई अलग tool use करते हैं तो most probably as a product manager वो भी आपकी tool किट के अंदर होगा. आप डिप्लॉयमेंट्स भी अगर देख रहे हैं और आप पाइपलाइन को भी देख रहे हैं तो उसके लिए जो टूल्स हैं हमारे पास, हम उसी के लिए Azure DevOps यूज़ करते हैं. तो हम वहाँ पे देख रहे होते हैं पाइपलाइन बिल्ड हो रही है या बिल्ड जा रही है या जो भी सारी चीज़ें. जी. तो ओके फायदा, ये बताएं कि आपके पास अभी कोई ऐसा न्यू है, कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपके लिए बहुत एक्साइटिंग हो और उस पे वर्क करना आपको बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा हो, आपके लिए भी एक चीज़ हो कि हाँ दिस इज अ न्यू चेंज फॉर मी और दिस इज अ गुड प्रोजेक्ट दैट आई कैन वर्क ऑन इट. या अच्छा, अभी जो मेरे पास में 4 प्रोडक्ट्स हैं जो पाइपलाइन में हैं. 2 एसियानो की टीम के साथ हैं और 2 वैसे मेरी टीम्स के साथ हैं. एसियानो के साथ जो 2 प्रोडक्ट्स हैं, एक उसमें फाइंड मी है. इट्स एन एप्लीकेशन. ज़ेबा वैसे उसको उस पर आप खुद काफ़ी ज़्यादा काम करती हैं, मेरा उससे इतना वैसे ताल्लुक नहीं है, बट द आइडिया इज़ रियली रियली गुड एंड आई थिंक इट्स रियली नीडेड. तो या तो फाइंड मी है. इसके अलावा जो एक एप्लीकेशन है जिसमें मेरा काफ़ी अभी फोकस है वो स्वैपर क्लब है. हमने एक बहुत बेयर बोन बेसिक किस्म की एप्लीकेशन बनाई है और वो एप्लीकेशन हमने बीटा टेस्टर्स को दी है और उसके बाद उसके जो हालात हुए हैं, एंड वी हैव हर्ड अ लॉट ऑफ फीडबैक, गुड फीडबैक, बैड फीडबैक, वेरी हार्श फीडबैक. सो अभी इस टाइम पे हम उस फीडबैक को भी सॉर्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि उसको आगे मजीद कैसे डेवलप करना है, उसी कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, तो वो बड़ा एक्साइटिंग है. इसके अलावा एक नॉलेज मैनेजमेंट, इंटेलिजेंट नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम का एक प्रोडक्ट है. वो जो है अभी the team is in Ukraine and in the US and they are working on it. अभी we are in the process of reaching out to our first set of users, first 1000 users को हमने reach किया है अभी. तो वो एक बड़ी exciting है because रोज़ाना उसमें सैकड़ों टिकट्स खुल रहे हैं.
and we are sorting through them. Then एक और product है which is a local product, a reverse bidding की एक product है. उसकी मुझे launch अभी clear नहीं है because वो under development है, but that is also something that I'm looking forward to. लेकिन जो main हमारे दो जिसमें मेरा अभी ज़्यादा फोकस है, सबसे ज़्यादा मेरा फोकस अभी स्वैपर के ऊपर है because I want to see that how this app fares into the local market. और ऐसी कोई चीज़ और बनी भी नहीं है. It's a mix of classified and barter economy. तो let's see. Okay. So अच्छा खायदा ये बताइए कि why did you decide to transition into the product management? हाँ, मेरा बैकग्राउंड क्वालिटी एश्योरेंस का है. पहली जॉब मेरी डेवलपमेंट की थी, मतलब इंटर्नशिप एंड जॉब, एंड देन आई मूव टुवर्ड्स quality assurance, then deployments, and then server maintenance and business analysis, project management, then account management. So मेरा बहुत सारा ताल्लुक जो है वो क्वालिटी और कम्युनिकेशन एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अराउंड रहा है. बहुत सारा काम राइटिंग उसके अंदर इन्वॉल्व रह गया है. तो व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन अपवर्क, और मैं वहाँ पे बहुत सारे फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स ले रही थी, तो मैंने ये देखा कि लोग when people were interacting with me, they were telling me that the skill set that you have is not of a project, it's of project management, लेकिन more of a product manager, because you have a lot of knowledge about how a product should be built and as well as how you can market it. And because quality का आपका background है, so you also have a lot of testing experience with you that is really helpful. और इसके अलावा ऑफ कोर्स मैंने ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम किया था, तो वो काफ़ी सारा इस तरह का एक्सपीरियंस है. तो वो एक क्लाइंट के साथ कॉन्वर्जेशन थी दैट बेसिकली स्टार्टेड दैट आइडिया इन माई हेड दैट मे बी आई शुड एक्सप्लोर इट एंड सी हाउ दिस इज़ डिफरेंट. और मुझे जो उसमें डिफरेंस नज़र आया वो ये कि एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर जब मेरा इस जो फोकस होता था वो ये होता था कि चीज़ रिलीज हो जाए ठीक से, और वो जब रिलीज हो गई तो उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई एम नॉट कंसर्न. लेकिन अब जो रोल है दैट इज ऑल दैट इज ऑन अनदर लेवल इन द सेंस दैट प्रोडक्ट रिलीज हो गई, अब उसके बाद क्या होगा वहां से कहानी शुरू होती है. बिकॉज अब जो है वो यू हैव टू मेक श्योर दैट इट इज सक्सेसफुल एंड यू हैव अ सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड KPIs एंड you're working with customers and a lot of things are involved. दूसरा ये है कि I do not like managing people in the sense कि आप मुझे developers और जो है वो testers और designers दे दें और आप मुझे कहें उनके सर पे बैठ जाओ, तो I am not that kind of a person. तो मेरी personality उस चीज़ से match नहीं करती, लेकिन मेरी personality इससे ज़रूर match करती है that I listen to people and I have this ability to extract information and then research and then present information and write information. So वो काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, थोड़ा सा एक्सपीरियंस था, थोड़ा सा इंटरेस्ट था, एंड आई थिंक थोड़े से पर्सनालिटी ट्रेट्स भी मैच करते हैं. तो आप जिस भी प्रोफेशन में हो, आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स अगर उससे मैच करते हैं तो वो बड़ा इट कम्स नेचुरली टू यू देन. सो आई थिंक मेरे केस में वो चीज़ थी, एंड इट स्टार्टेड बिकॉज आई वाज basically talked into by a customer. So yeah. Okay. But team management भी आपकी, क्योंकि मैं आपके साथ वर्क करती हूँ तो I know it's all ये भी बहुत अच्छी है आपकी team management skills भी, it's very good for you, I must say. Okay जी, thank you. अच्छा, I can see that one of our team member is also sending us questions from the audience. Okay, so I've received 2 questions. मैं इसका जवाब दे देती हूँ ज़ेबा, then you can maybe start with the rest of your questions. So there are many processes for developing the product. So which process is the most effective? Yes, development processes की बात करें तो development की बहुत सारी methodologies हैं. You can pick whichever you want. लेकिन आप उसको वैसे ही पिक नहीं करते कि मुझे ये अच्छी लग रही है इसलिए मैं ये पिक कर रही हूँ. आप इसलिए पिक करते हैं कि आपकी टीम किसके साथ कंफर्टेबल है. तो मैंने उन टीम्स के साथ भी काम किया जो प्योरली जो है वो आइटरेटिव मॉडल के साथ काम कर रही होती हैं. मैंने उन टीम्स के साथ भी काम किया है जो XP के साथ काम कर रही होती हैं. उन टीम्स के साथ भी काम किया है जो स्क्रम के साथ काम कर रही होती हैं. तो ये टीम के ऊपर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, किस इंडस्ट्री की प्रोडक्ट है, किस तरह की टाइमलाइन है, किस तरह का बजट है. अगर आपके पास बजट है कि आप TDD यूज़ कर सकते हैं और आप जो है वो आपके पास स्किल्ड रिसोर्सेज हैं जो TDD
they are very comfortable with that, though you should definitely go with that. जो सबसे लाइट वेट और इजी मेथडोलॉजी है यूज़ करने के हवाले से या उसको इम्प्लीमेंट करने के हवाले से, वो स्क्रम है. उसको मास्टर करना मुश्किल है, लेकिन उसको बेसिकली अंडरस्टैंड करना या बेसिक उसकी इम्प्लीमेंटेशन इज़ कंपैरेटिवली ईजी. तो अभी हम एशियानो में जो हम यूज़ कर रहे हैं मेथडोलॉजी, वो स्क्रम ही है. और जो मेरी बाकी टीम्स हैं उसके अंदर भी हम स्क्रम यूज़ कर रहे हैं. थोड़ी सी डिफरेंट फॉर्म है उसकी, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी टीम का एक्सपीरियंस किस एरिया में है और प्रोडक्ट किस तरह की है. लेकिन मोर और लेस some form of scrum is being used. And if it's not a very regulated industry product, and if it is not a very long product with fixed scope, तो आप स्क्रम को बहुत आराम से जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. Please do share the challenges you faced and how did you encounter during your decade of experience. Okay, challenges हर रोल के अलग challenges हैं. अगर आप QA में काम करें तो आपके challenges ये हैं कि आपको बिल्ड आखिर में मिलती है और फिर आप रोते रहते हैं. अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हैं तो फिर आप इससे रोते रहते हैं कि लोग टाइम पे काम डिलीवर नहीं कर रहे हैं. अगर आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट में हैं तो आप शायद इसलिए रोते रहते हैं. आपका चैलेंज मेन ये होता है कि आप कस्टमर के साथ जो डिस्कनेक्ट है उसको, या यूजर के साथ जो डिस्कनेक्ट है उसको कम करने की कोशिश करें. सो अलग अलग तरह के चैलेंजेस हैं. मेरे करियर के चैलेंजेस जो हैं वो मोस्टली दे रिवॉल्व अराउंड माय इनएबिलिटी टू kind of work in a traditional environment where people do not value people. मेरा एक्सपीरियंस पिछले 6 सालों में यूजुअली उन लोगों के साथ काम करने का रहा है जो कि बड़े सिविलाइज्ड लोग रहे हैं, and they have had excellent team management and leadership skills. और उससे पहले जो मेरा लोकल मार्केट का काफ़ी सारा एक्सपीरियंस था वो बहुत बुरा था, because I was working in very small companies and I was working with teams that were really badly managed और बड़ी micro management और इस तरह की चीज़ें थी. तो वो एक that is something that I am not very comfortable with that. तो मेरे करियर का mostly challenge जो है वो finding the right kind of team where people can thrive in my presence and I can also thrive in their presence, and then we can do good work. So वो एक वैसी टीम ढूंढना और वैसे लोगों के साथ काम करना एक ये एक चैलेंज है, बिकॉज आपको ऐसे लोग नहीं मिलते, ऐसी टीम्स नहीं मिलती. मैं थोड़ी सी लकी रही कि मुझे पिछले 6 सालों में कुछ बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स पे काम करने का मौका मिला और बहुत अच्छे क्लाइंट्स के साथ, बहुत अच्छी टीम के साथ काम करने का मौका मिला. तो अब मैं अक्सर मजाक में कहती हूँ कि मेरी आदतें बिगड़ गई हैं. तो अब अगर कोई ज़रा से भी चीज़ ठीक नहीं होती तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा फील होने लगता है कि यार दिस इज़न्ट हाउ थिंग्स शुड बी. सो ये चैलेंजेस हैं, आपकी अपनी पर्सनालिटी के चैलेंजेस होते हैं, आपकी लिमिटेशंस हैं, लर्निंग की लिमिटेशंस हैं. सो इस तरह के चैलेंजेस और ओवरकम करने का एक ही तरीका है, दैट यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ अ चैलेंज एंड देन यू आइडेंटिफाई कि इसके अंदर क्या पॉइंट्स हैं, क्या चीज़ें हैं जो मुझे इम्प्रूव करनी हैं. शुड आई क्विट, शुड आई नॉट क्विट, शुड आई स्टे, शुड आई improve myself, should I talk to someone, should I find a mentor. So there could be a lot of ways to solve these challenges. जी. अच्छा ज़ेबा, आपकी एक तो हमारे पास हाँ आपकी लिस्ट में मुझे भी कुछ और क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं. एक है हाउ डू यू इंटरेक्ट विद योर यूजर्स. ये एक सवाल हाँ मुझे नजर आ रहा है और मुझे यूजर्स. हाँ अच्छा, इंटरेक्ट विद यूजर्स. जी आप इसको कंटिन्यू. हाँ इसके अंदर बहुत सारे तरीके हैं. जैसे अभी मैंने आपको स्वैपर का बताया कि उसके अंदर हम कस्टमर्स जो यूजर्स हैं या कस्टमर्स हैं उनको हम रीच आउट खुद से कर रहे हैं. हम बीटा टेस्टर्स कलेक्ट कर रहे थे तो हम उनको रीच आउट कर रहे थे, उनको बेसिकली हैंड पिक करके हम उनको दे रहे थे और हम उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, उनको देख रहे थे वो एप्लीकेशन किस तरह यूज़ कर रहे हैं, उनका फीडबैक सुन रहे थे, डांटे भी सुन रहे थे साथ में. आपने खुद देखे हैं बीटा टेस्टिंग के फॉर्म्स, कुछ लोगों ने हमारी डांट भी लगाई है उसके ऊपर कि इसमें ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है. तो ये इसी तरह की चीज़ें आप कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करते हैं. सोशल मीडिया इज़ एन एक्सेलेंट वे ऑफ डूइंग दैट. अगर आप इन पर्सन इंटरव्यूज़ कर सकते हैं या आप वीडियो के थ्रू इंटरव्यू कर सकते हैं, वो मैंने खुद किए हैं. अभी जो हमारा नॉलेज मैनेजमेंट का मेरा एक प्रोडक्ट था उसके लिए मैंने कस्टमर्स के साथ, जो कंपनीज थी यानी बिजनेस थे हमारे कस्टमर्स,
उनके साथ 1-to-1 जो है वो जूम कॉल्स की हैं हमने। पूरा सिस्टम वो यूज़ कर रहे थे मेरे साथ और मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रही थी। हमने यूजेबिलिटी और यूज़र टेस्टिंग के सेशंस किए हैं। तो आप गोल आपका ये होता है कि आप कस्टमर को ये बताते हैं कि उसका जो फीडबैक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दिस इज समथिंग दैट यू आर लुकिंग आफ्टर। यू आर नॉट लुकिंग फॉर वैलिडेशन, यू आर नॉट लुकिंग फॉर तारीफ, यू आर नॉट लुकिंग फॉर देयर मनी, you are only looking for how they feel about whatever you have built. And then you need to basically create some kind of artifact and some kind of action plan out of it. So जो प्रॉब्लम्स उनको आ रही हैं आप उनको कैसे सॉल्व करेंगे, जो अगर उन्हें बग्स इनकाउंटर किए हैं या इश्यूज इनकाउंटर किए हैं, एम्बिग्विटीज इनकाउंटर की हैं, तो आप उनको कैसे रिजॉल्व करेंगे. So this is how you do it. You do not go into a customer interaction by thinking about justifying your service or product. You never do that. Your idea is to just go and listen and learn from them. बाज़ औक़ात बड़ी अनफेयर बातें भी लोग कर लेते हैं. जैसे अभी हमें स्वैपर में किसी ने बोला कि ये किसी यूनिवर्सिटी के बच्चों का प्रोडक्ट है, इसमें ये चीज़ें नहीं है, वो चीज़ें नहीं है, और उनको हमने बताया कि भाई ये बेयर बोन है, ये 4 फीचर्स हैं जो हमने बिल्ड किए हैं बिकॉज यू आर टेस्ट रनिंग एन आइडिया, और ये प्रोटोटाइप समझ लें आप इसको. लेकिन अगेन पीपल वोंट अंडरस्टैंड एंड दे विल गिव यू वेरी हार्श फीडबैक. एंड यही आपका काम है कि आपने वो हार्श फीडबैक लेना है और उसमें से मीनिंगफुल चीज़ें निकालनी है और वो मीनिंगफुल चीज़ें आपने इम्प्लीमेंट करनी है. तो ये इंटरेक्शन के मेन मोड्स हैं. अगर आपके कस्टमर के साथ, अगर आप अपने कस्टमर या अपने यूज़र के साथ इन पर्सन मिल सकते हैं, उनको खुद से आपका प्रोडक्ट एक्सपीरियंस यूज़ करते हुए एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू. Otherwise your virtual tools will work flawlessly. You can also stay in touch with your customers via, अगर आपका कोई ticketing system है या कोई support का system है, तो उसके थ्रू भी you can interact with your customers and stay in touch with them. और अगर आपकी कोई community है, जैसे हमने Swapper के लिए community बनाई है, तो उसके अंदर of course you can interact with them and listen to their problems and ask them how they have been using the application. Okay. So, Faiza, I can see another question from the audience. Uh, there are different stages of the product development. So, which stage do you think is the most challenging one? अच्छा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट की सबसे चैलेंजिंग स्टेज जो है आपकी, वो होती है जब आप उसको टेस्ट कर रहे होते हैं, और आपकी प्रोडक्ट मैनेजमेंट, प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल है उसके अंदर उसकी सबसे चैलेंजिंग स्टेज होती है जब आप उसको ग्रो कर रहे होते हैं. तो ये 2 स्टेजेस हैं जो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा, मेरे एक्सपीरियंस में सबसे ज़्यादा जो है वो चैलेंजिंग नज़र आती हैं, बिकॉज यहाँ पर जो है वो मिस्टेक्स के इतने चांसेस नहीं होते. तो जब आप टेस्टिंग कर रहे होते हैं आप बड़े विजिलेंट होते हैं, जब आप प्रोडक्ट की ग्रोथ कर रहे होते हैं तब आप बड़े विजिलेंट होते हैं, बिकॉज यू नो दैट थिंग्स, देयर आर थिंग्स दैट कैन मेक और ब्रेक द होल डिसीजन. Okay. So, एक और question है कि can you describe a scenario as a product manager where you failed and what did you learn from it? It's a good question. या इट इज़ वेरी गुड क्वेश्चन. हाँ बिल्कुल, बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं, और हम फेल भी, ऑफ कोर्स फेलियर इज़ पार्ट ऑफ व्हाट वी डू. असल में होता ये कि ये जो प्रोफेशन है, बिकॉज इट्स एन इंटरसेक्शन ऑफ 3 डिफरेंट फील्ड्स, सो आपके पास बहुत सारी डिफरेंट कॉम्पिटेंसीज हैं जो आपको लर्न करनी पड़ती हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप साथ साथ सीख रहे होते हैं. हर तरह की प्रोडक्ट के चैलेंजेस अलग तरह के होते हैं. तो अभी एक जो बड़ा ख़तरनाक किस्म का फेलियर जो मैंने एक एक्सपीरियंस किया, वो ये था कि आई वाज हायर्ड टू वर्क विद अ टीम, एंड वी वर डेवलपिंग a tool that was part lead generation, part project management, part customer relationship management, part a social media tool. So it has a lot of features, and when they hired me they were at a stage where they had created like an SRS, a very detailed 400 pages SRS, and what they were doing is that they were basically reviewing that, and they took weeks and weeks for reviewing that SRS. And when they joined me, I kind of pushed, when they hired me and I joined, I kind of pushed them that this SRS doesn't make sense and maybe we need to start with some basic features and start working on something.
and they were like, no, we want to estimate it and find the whole cost of the product, and then we want to reach out to investors, and it was like a whole thing that was happening. And I said yes for some reason, and I said, okay, let's do that. Let's estimate that 400-page SRS and then find the cost. And you know that कि अगर आपके पास 400 पेजेस का SRS है और आपकी एस्टिमेशन आप उसकी निकाल रहे हैं, तो वो एस्टिमेशन गलत होगी, बिकॉज एक प्रोडक्ट जब आप बना रहे हैं और आपने वो प्रोडक्ट बना के किसी को देनी नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, वो एक प्रोडक्ट है जो आप मेंटेन कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपने उसकी मार्केट नीड आइडेंटिफाई करनी है, उसका SRS क्यों बना रहे हैं आप। और ऐसे कितने ज्यादा टूल्स हैं कि आपको अपने कंपेटिटर्स का पता है, कि आपको अपनी मार्केट का पता है. So I got into that, like I got into that idea that that tech estimation is the most important thing right now, rather than finding prospect users. Sorry. And that पता नहीं 1 महीना लगा के हमने estimates निकाले, और पता नहीं हमने क्या क्या किया, वो प्रोडक्ट नहीं बनी. ठीक है. They paid me for a few months. They paid the other team members for a few months. We did not even write a single line of code. And हम सिर्फ यही करते रहे, हम SRS के एस्टिमेट्स करते रहे, हम वायर फ्रेम्स बनाते रहे, हम पता नहीं 5000 चीजें करते रहे, हमने लेकिन कोई यूजर रिसर्च नहीं की. और बाद में ये हुआ कि इवेंचुअली व्हेन हम में से कुछ लोग होश में आए और हमने कहा कि नहीं यार, हम इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, इसकी इतनी बड़ी इसकी कॉस्ट है इसको बिल्ड करने की. आइडिया अच्छा है, बट क्या मार्केट में ऐसे और टूल्स हैं स्पेशलाइज्ड जो यही काम कर रहे हो. एंड देन वी आइडेंटिफाइड कि हमसे ज्यादा स्मार्ट जो है वो तो हमारे टूल्स से ज्यादा स्मार्ट टूल्स मार्केट में मौजूद हैं. एंड वो जो टूल्स हैं वो नेचुरली इवॉल्व हुए हैं, यानी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुए हैं, और उनकी पूरी ट्रैक्शन है, उनका पूरा मार्केट शेयर है, एंड देयर इज नो वे दैट वी कैन रीच आउट टू दैट. और जब हमने 1-2 महीने तो सिर्फ एस्टिमेशन निकालने में और 2 महीने SRS लिखने में लगा दिया. So that was one of the failures that I think I'm going to remember till my grave, in the sense that I could not even understand कि ये हो क्या रहा है, and I could not guide the team or guide the people around me that this is not how you build a product, this is not how you think about investing into a product. So वो एक बड़ा spectacular किस्म का failure जो है वो रहा है. तो ऑडियंस की तरफ से हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं उसी पे आपसे कंटिन्यू करती हूँ. एंड हाउ डू यू मॉनिटर परफॉर्मेंस एंड सक्सेस? टूल की परफॉर्मेंस और टूल की सक्सेस, सॉरी आपकी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस और प्रोडक्ट की सक्सेस आप KPI से मॉनिटर करते हैं. आपकी KPI क्या है ये आप सेट करते हैं. बहुत सारी KPIs हैं. आप ये देखते हैं कि कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू कितनी है, आप ये देखते हैं कि कस्टमर कितना टाइम उसके ऊपर स्पेंड कर रहा है, आप ये देखते हैं कि आपका जो कस्टमर है वो कितनी लीड्स लेकर आ रहा है आपके पास. फॉर एग्जांपल अगर इस तरह का कोई सोल्यूशन है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मेट्रिसेस हैं जो हम यूज़ करते हैं फॉर मैनेजिंग सक्सेस एंड basically जो performance है उसकी. Number of downloads can be one of the KPIs, but I don't think it's a good idea. If it's an app, we don't talk about number of downloads, we rather talk about the user behavior on the application. तो हम एनालिटिक्स का इस्तेमाल करते हैं. आप कोई बहुत सारे गूगल और फेसबुक एनालिटिक्स के अलावा बहुत सारे और भी टूल्स हैं, बहुत अच्छे पेड टूल्स हैं, तो आप कोई भी टूल इस्तेमाल कर सकते हैं. आप हीट मैप जनरेट कर सकते हैं और बहुत सारे काम कर सकते हैं. आप ये देख सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन कोई कितनी दफ़ा करा रहा है, अपग्रेड्स कितने हो रहे हैं सब्सक्रिप्शन में, डाउनग्रेड कितने हो रहे हैं, आप रेवेन्यू को देख रहे हैं. So there are a lot of things that you can take a look at depending upon the type of product that you're building. Okay. Another question is कि किसी ने पूछा है, can you recommend a project management course for a 15-year-old or to say a beginner? हाँ जी, आप कर सकते हैं. हमारे पास 1-2 कुछ बड़े ज़बरदस्त यूट्यूब चैनल्स हैं. अगर आप कोर्स करना चाह रहे हैं तो प्रोडक्ट स्कूल के काफ़ी सारे कोर्सेज हैं. डिजिटल प्रोडक्ट मैनेजमेंट की स्पेशलाइजेशन है कोर्सेरा पे, जो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया कराती है, वो बहुत अच्छी है. यू कैन एनरोल इन इट फॉर फ्री. प्रोडक्ट स्कूल के जो कोर्सेज हैं वो काफ़ी महंगे हैं, $2-3 हज़ार के, लेकिन अभी कोविड की वजह से वो कोर्सेज फ्री हैं. वो मैंने अभी ज़ेबा और बाकी लोगों को भी भेजे हैं कि you guys can also take a look at it.
सो वो बड़ी ज़बरदस्त उसके अंदर जो है वो जो मास्टर क्लासेस उसकी मैंने कंप्लीट की हैं उसके अंदर बड़ी शॉर्ट टेट टॉक स्टाइल या उस तरह स्टाइल की उसमें कॉन्वर्जेशंस थी, बड़े ज़बरदस्त बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, लेसन लर्न थे फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। अगर आपने बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन टू प्रोडक्ट मैनेजमेंट देखना है तो आपको कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं, एक एटलाजियन का है, एक प्रोडक्ट प्लान एक टूल है, उसका एक यूट्यूब चैनल है जो कि बहुत अच्छा है, वहाँ पे आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स लर्न कर सकते हैं। माइंड द प्रोडक्ट करके एक चैनल है यूट्यूब पे, काफ़ी अच्छी उसकी वीडियोस हो सकती हैं, तो वो बेसिक चीज़ें आप वहाँ से लर्न कर सकते हैं। अगर आपने कोई कुछ बुक्स वगैरह उस हवाले से पढ़नी है तो वो भी डेफिनेटली आई कैन गिव यू सम recommendations for that. लेकिन ये कि if you are a 15-year-old, I'm pretty sure you must like visual mediums better. So प्रोडक्ट प्लान के और माइंड द प्रोडक्ट के चैनल से शुरू करें और प्रोडक्ट स्कूल के कुछ कोर्सेज और कुछ क्लासेस लेके देखें. सो आई थिंक दैट विल बी रियली हेल्पफुल. Okay, so next question is, are there specific metrics to measure product strategy success rate? जी बिल्कुल. अच्छा, इसके अंदर हमारे पास product की, एक सेकेंड, let me see the question as well. Are there any specific matrices to measure product strategy success rate? Product strategy is basically what you're building when you are getting into a phase. So for example, Swapper के अंदर हमने एक strategy build की, हमने उसकी एक marketing की strategy build की, एक हमने उसकी product development की strategy build की. प्रोडक्ट जो भी आप बनाते हैं उसके लिए आप उसके गोल्स सेट करते हैं, तो उसके सेट नंबर ऑफ गोल्स हैं. फॉर एग्जांपल मेरे लिए स्वैपर की जो सक्सेस थी उसके अंदर एक आइडिया की पेनिट्रेशन थी कि जो आइडिया हम जिसके बारे में हम बात करें उसकी कितनी पेनिट्रेशन है, उसकी अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते. अवेयरनेस क्रिएट करने का एक तरीका हमारे लिए था कि हम उसकी कम्युनिटी बिल्ड करते और हम उसके साथ एक्सपेरिमेंट करते कि हम लोगों किस से जब ये बात करते हैं सस्टेनेबल लिविंग की या बार्टरिंग सिस्टम की, तो क्या लोग इसके अंदर इंगेज होते हैं इस कॉन्वर्जेशन के अंदर. तो एक मेरे जहन में ये था. दूसरा हमारे जहन में ये था कि हमने इस अपने इस क्वार्टर के लिए हमने डिसाइड किया था कि जी हमने फॉर एग्जांपल 1000 यूजर अपने इकट्ठे करने हैं और वो बड़े सेलेक्ट यूजर्स होंगे एंड देन वी आर गोइंग टू सी हाउ दे बिहेव एंड देन वी आर गोइंग टू सी कि उनके बिहेवियर का पैटर्न क्या है उन एप्लीकेशन. तो ये जो हमारी क्वार्टर की स्ट्रैटेजी थी उसका सक्सेस रेट इन स्मार्ट गोल्स से हमने बनाया है. तो एक प्रोडक्ट की एक ऑफ कोर्स एक ओवरआर्चिंग एक पूरी डिटेल स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन यूजुअली हम क्वार्टर्स के अंदर उस स्ट्रैटेजी को बना रहे होते हैं जिसके अंदर हम अपने जो है वो या तो OKR सेट कर रहे होते हैं या आप KPI सेट कर रहे होते हैं. तो फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी अब हमारी जो एप्लीकेशन है इसके अंदर कोई बिजनेस मॉडल नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोई बिजनेस मॉडल वाली एप्लीकेशन है तो आप रिकरिंग अपना रेवेन्यू देख रहे हैं कि इस क्वार्टर के लिए रिकरिंग रेवेन्यू क्या है. आपकी स्ट्रैटेजी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके पास अवेयरनेस है उसके अंदर, उसके बाद यूज़र का बिहेवियर है, उसके बाद आपके पास रेवेन्यू है, आप चर्न रेट देख रहे होते हैं फॉर एग्जांपल कुछ एप्लीकेशंस के अंदर डिपेंडिंग अपॉन के द काइंड ऑफ एप्लीकेशन यू नो कि ये है. बाकी जो सक्सेस रेट है अगेन हम इसको इस तरह से नहीं बोल सकते कि ये अनसक्सेसफुल है या सक्सेसफुल है. अ लॉट ऑफ टाइम्स आप गोल्स को इस तरह बता रहे होते हैं कि आपने एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ गोल अचीव किया है. तो हम ये कहते हैं कि जी इस महीने के हमारे 10 गोल थे, उसमें से 4 हाई प्रायोरिटी के गोल थे, 4 मीडियम प्रायोरिटी के गोल थे, 4 लो प्रायोरिटी के गोल थे. तो 4 हाई प्रायोरिटी के अंदर हमने 2 अचीव कर लिए फॉर एग्जांपल. सो वी से दैट 50% ऑफ द हाई प्रायोरिटी goals have been met for this quarter. So rather than putting it in a box कि it's successful and unsuccessful, we usually do that. लेकिन अगर आपके पास बहुत कम मेट्रिसेस हैं, बहुत कम गोल्स हैं, आप सिर्फ नंबर ऑफ डाउनलोड्स पे फोकस कर रहे हैं या सिर्फ रिकरिंग रेवेन्यू के ऊपर देख रहे हैं या आप जो है वो कस्टमर की कॉन्वर्जेशन देख रहे हैं या आप देख रहे हैं कि उसकी एक्विजिशन की कॉस्ट क्या है या लाइफ टाइम वैल्यू क्या है, 4-5 आपके पास मेट्रिसेस हैं, तो हो सकता है उस सिचुएशन में आप ये कहें कि ये आप सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल है. लेकिन अगर थोड़ी सी नुआंस स्ट्रैटेजी होगी तो इन अ लॉट ऑफ केसेस आप अपने गोल्स में से हाईएस्ट प्रायोरिटी गोल्स में से देख रहे होते हैं कि
कितने % जो है वो यू हैव मेट योर गोल. Okay. Faizal, suggest some user management tool for testing. User management tool for testing? I'm not sure what a This user is a management question. tool is. I have no idea what that is. I think ये कोई tool पूछना चाह रहे हैं ऑडियंस की तरफ से. आई थिंक ये टेस्टिंग के लिए कोई टूल पूछना चाह रहे हैं और मैनेजमेंट टूल, दोनों टूल्स की या तो बात की है इन्होंने. अच्छा, अगर अगर ये यूजर बिहेवियर के लिए बात कर रहे हैं तो उसके लिए आप एनालिटिक्स का टूल यूज करेंगे टू सी के यूजर का बिहेवियर क्या है ऑन योर एप्लीकेशन. आप अगर ए बी टेस्टिंग करना चाह रहे हैं तो ए बी टेस्टिंग के टूल्स हैं, आप वो कर सकते हैं जिसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि यूजर कौन से टाइप के पेज को या इंटरफेस को ज़्यादा पसंद कर रहा है. अगर आप नंबर ऑफ यूजर्स का लोड एप्लीकेशन के ऊपर डाल के देखना चाह रहे हैं तो उसमें आपके पास जे मीटर है और दूसरे टूल्स हैं जिनके थ्रू आप लोड एंड स्ट्रेस टेस्टिंग या परफॉर्मेंस टेस्टिंग कर रहे होते हैं. सो ये सारे टूल्स हैं दैट यू कैन यूज. मुझे अभी भी श्योर नहीं पता कि वो कौन सा टूल पूछ रहे हैं, इसलिए मैंने 3 अलग अलग कैटेगरी की चीजें. हाँ, उन्होंने एक्चुअली क्वेश्चन उन्होंने ऐसे ही लिखा है तो मैंने भी अपनी तरफ से इसको थोड़ा सा एनहांस कर लिया कि शायद वो दोनों टूल्स ही पूछ रहे हैं. So get on the next question. As a native technical person, what technical skills should I have that can contribute to my ability to perform the roles of a product manager? अच्छा, टेक्निकल स्किल्स जो आपको रिक्वायर्ड हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, या जो टेक्निकल स्किल्स आपको रिक्वायर्ड हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर वो यही हैं कि आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में पता हो, आपको बेसिक नॉलेज टेक्नोलॉजी की, मतलब जो टेक्नोलॉजी का एक वो बंदा जो कि टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट प्रोसेस से फेमिलियर है, आपको पता हो एपीआई क्या होता है, आपको पता हो लेयर्स क्या होती हैं, एप्लीकेशन लेयर क्या होती है, आपको पता होना चाहिए कि डेटाबेस का कनेक्शन क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि सर्वर पे डिप्लॉयमेंट कैसे होती है या पाइपलाइन क्या होती है, या आपको पता होना चाहिए कि आप और आप बेसिक टेक्नोलॉजी के ये जो कुछ थोड़े मोड़े छोटे मोटे काम है ये आप कर सकते हो. मैंने अभी एक टीम के साथ काम मैं कर रही हूँ, वो बेसिकली प्रोडक्ट मैनेजमेंट का एक कोर्स बना रही है फॉर नॉन टेक्निकल पीपल. सो उसके अंदर उन्होंने सारी चीज़ें डाली हैं, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट से वो शुरू कर रहे हैं और मॉडर्न प्रोडक्ट मैनेजमेंट तक वो सारी चीज़ें सिखा रहे हैं इन शॉर्ट फॉर्म वीडियोज़. So अभी वो in the process है. I'm working on that. I'm writing a lot of video scripts for that, and I'm writing a lot of content for that. तो वो complete हो जाएगा तो definitely I'm going to share it with everyone as well. कि वो जब हमारा complete हो जाएगा पूरा कोर्स बन जाएगा तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं है. टेक्नोलॉजी की इतनी नॉलेज होना कि आपको पता हो कि टेक्नोलॉजी कैसे बिल्ड होती है ये काफ़ी है. डिज़ाइन की इतनी नॉलेज होना कि आपको पता हो कि आप गुड डिज़ाइन और बैड डिज़ाइन में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो और ऑफ कोर्स बिजनेस की कॉम्पिटेंसीज आपके पास हों. एंड देन इसके अंदर बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारी राइटिंग, बहुत सारी कम्युनिकेशन और वो सारी चीज़ें हैं. एक बहुत बड़ा जो इसका मेरे टाइम का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो उसमें भी जा रहा होता है कि मैं बहुत सारी नई प्रोडक्ट्स एनालाइज कर रही होती हूँ या मैं खोल के देख रही होती हूँ, चेक कर रही होती हूँ चीज़ें फॉर आइडियाज, फॉर टेस्टिंग देम, फॉर इवन सॉर्ट ऑफ शार्पन योर स्किल्स इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफाइंग दैट this is a product that was built with a lot of thought into it and which is user centric or not. तो वो भी आपको चीज़ें साथ साथ देखनी पड़ती. ओके, एक नॉन टेक्निकल ऑडियंस से एक सवाल है कि वो नॉन टेक्निकल है बट क्या उनका सवाल ये है कि कैन अ नॉन टेक्निकल पर्सन कैन बी अ गुड प्रोडक्ट मैनेजर? यस अभी मैंने इसका जवाब दिया ना कि मैं थिंकफुल के साथ काम कर रही हूँ, उनका मैं कोर्स डेवलप कर रही हूँ. वो प्रोडक्ट मैनेजमेंट का कोर्स है फॉर नॉन टेक्निकल पीपल. you only need to have like a high school diploma to do that course. उसमें बड़ा comprehensive, बड़ा ज़बरदस्त उसका मॉडल है. They connect you with a mentor and you work with your mentor and there are a lot of assignments and a lot of projects and a lot of reading involved, a lot of video content involved. So I'm working on the video content for that. तो वो है, तो बिल्कुल बन सकता है. बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, किसी मेंटोर के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, एग्जैक्टली. सीखने पड़ेंगे. लेकिन ये कि यू कैन डेफिनेटली लर्न इट. कोई भी स्किल ऐसी नहीं है जो आप लर्न नहीं कर सकते, मेरा नहीं ख्याल. जब हम कोड गर्ल्स में लड़कियां जिनको सिर्फ इंटरनेट पे सोशल मीडिया यूज़ करने आता है उनको हम कोडर बना सकते हैं बगैर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री के. तो आप आईटी डिपार्टमेंट में होकर प्रोडक्ट मैनेजमेंट बिल्कुल सीख सकते हैं. Exactly. Learning is the key. Okay.
Which leadership skills were the most difficult to develop? Patience. That's the most difficult skill to develop. The reason being कि आप जब बहुत सारे लोगों के साथ काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि यू आर पेशेंट विद पीपल एंड यू हेयर देम आउट. जो मैंने रिपीटेडली प्रॉब्लम देखा है विद टेक्नोलॉजी लीडर्स या प्रोडक्ट टीम के अंदर लोगों के अंदर, कि वो उनके अंदर पेशेंस नहीं होता एंड दे लूज देयर टेम्पर, दे गेट मैड एट पीपल, दे स्टार्ट येलिंग एट पीपल. तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं और वो ऑफ कोर्स एज अ लीडर और एज अ मैनेजर यू कैन नॉट डू दैट. अगर आप अगर आप पैनिक क्रिएट करेंगे तो फिर हर जगह पैनिक होगी. तो यू शुड बी द पर्सन हु शुड नेवर पैनिक, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर द पर्सन हु स्टेयरिंग द शिप. तो जो बंदा शिप स्टेयर कर रहा है, अगर वो बंदा पैनिक करना शुरू कर देगा तो कश्ती डूब जाएगी. सो बेहतर ये कि यू मेक श्योर दैट यू आर वेरी वेरी विजिलेंट अबाउट योर ओन इमोशनल स्टेट and you take care of team, you take care of your team like you take care of your family. And then you also are very vigilant about how you react to people and how you react to things. It's extremely important because कस्टमर का फीडबैक भी हार्श आएगा. डेवलपमेंट टीम के साथ आप काम करें, उनके भी मसले होंगे, डिज़ाइन टीम के भी मसले होंगे, क्यूए टीम के भी मसले होंगे, मार्केटिंग के साथ आप काम करेंगे, उनके हज़ार मसले होंगे. तो अगर आप अपना टेम्पर लूज करते रहेंगे या आप इमोशनली इंटेलिजेंट वे में लोगों को जवाब नहीं देंगे तो आपकी जॉब बहुत मुश्किल हो जाएगी. और वो वैसी बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड लाइंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जॉब रोल्स नहीं होते. एक बड़ी कंपनी में, जैसे मैंने बड़ी कंपनीज के साथ काम किया है, तो बहुत बड़ी टीम 100-200 लोगों की टीम है जो प्रोडक्ट पे काम करी है और मैं एज अ प्रोडक्ट मैनेजर हूँ और मेरे पास पूरी प्रोडक्ट का एक फीचर था, एक फीचर, ठीक है, जो 6 महीने तक मैंने मैनेज किया, सिर्फ एक फीचर, बिकॉज दे हायर्ड मी एज अ कॉन्ट्रैक्टर टू इम्प्रूव दैट फीचर एंड आई इम्प्रूव्ड इट. दे ऑफर्ड मी अ फुल टाइम पोजीशन बट आई वाज टायर्ड ऑफ दैट फीचर बिकॉज मुझे उसी पे काम करना था अगले 1 साल तक भी आगे आगे बढ़ने के लिए. एंड आई डिड नॉट वांट टू डू दैट, तो आई लेफ्ट इट. लेकिन अगर अब मैं जैसे आपको बता रही हूँ कि मैं जिस तरह छोटी टीम्स के साथ काम कर रही हूँ, तो अब मेरे पास 4 प्रोडक्ट्स हैं. तो अब ये रोल भी वेरी करता है ना कि आप किस तरह के एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, किस तरह की टीम में काम कर रहे हैं. सो उसके लिए यू हैव टू बी रियली इमोशनली इंटेलिजेंट in terms of how you deal with people and how you talk to them. ओके फायदा. तो एक क्वेश्चन और है, फिर मेरे 2 क्वेश्चंस मेरी तरफ से हैं, तो हम ये एक लास्ट क्वेश्चन ऑडियंस की तरफ से ऐड करते हैं, फिर मैं अपने क्वेश्चंस की तरफ आऊंगी. Since market research is very involved, so how do you ensure that the marketing team fully understand the technical research challenges, and what challenges have you faced during the market research? Okay, very good question and very detailed question. हाँ, तो इसके अंदर एक डिस्कनेक्ट है बिकॉज मार्केटिंग के लोगों के पास यूजर से इनपुट आ रहा होता है और बहुत सारी दफ़ा आपको यूजर या कस्टमर ये बोल रहा होता है कि मुझे ये बना दो, मुझे ये फीचर चाहिए, मगर उस फीचर के पीछे क्या रीज़न है, क्या रैशनल है, क्या कैपेबिलिटी वो बिल्ड कराना चाह रहा है, उसमें चीज़ें क्लियर नहीं होती. तो आपने इस बात का ख्याल रखना है एज अ प्रोडक्ट मैनेजर. मार्केट रिसर्च में हम ये नहीं देखते कि हमें क्या फीचर्स चाहिए, हम ये देखते हैं कि हमारा सिस्टम या हमारा प्रोडक्ट क्या कैपेबिलिटीज रखता है, क्या प्रॉब्लम्स हैं जो वो सॉल्व कर रहा है, क्या कौन सी ऐसी जॉब है जो यूजर परफॉर्म करना चाह रहा है जिसको फैसिलिटेट कर रही है आपकी प्रोडक्ट, यानी एक कैपेबिलिटी आपने उसके अंदर बिल्ड की है. सो इट्स नॉट अबाउट हैविंग 500 फीचर्स और 200 फीचर्स. जब मैं मार्केट रिसर्च लोगों की देख रही होती हूँ तो मुझे अक्सर ये नजर आ रहा होता है कि उनका फोकस होता है फीचर्स के ऊपर. वो ये बात कर रहे थे, अच्छा उस प्रोडक्ट में 15 फीचर्स हैं, ये 15 फीचर्स हैं, हमारे पास 15 से ज्यादा 20 फीचर्स हैं और ओवरलैपिंग फीचर्स हैं. तो वो समझ रहे होते हैं कि वी हैव वॉन द वॉर बिकॉज वी हैव 20 फीचर्स. इट डजंट वर्क दैट वे. मैंने अभी आपको वेनमो की एग्जांपल दी थी, अब उस वक्त आप ड्रॉप आउट हो गई थी, कि इट डज वन जॉब एंड इट डज इट रियली वेल एंड दैट्स व्हाई पीपल नो इट. एवरीबडी, इट हैज बिकम लाइक अ वर्ब. पीपल से वेनमो मी, ठीक है, बिकॉज इट डज अ जॉब एंड इट डज इट रियली रियली वेल. तो इसी तरह से जो भी आपका प्रोडक्ट है, उस मार्केट रिसर्च में आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी कैपेबिलिटीज हैं, वो कौन सी यूजर की प्रॉब्लम्स हैं या नीड्स हैं. एंड अगेन उसमें ये आइडेंटिफिकेशन होना कि नीड्स और वांट्स में क्या फ़र्क है और वो नीड्स एक्चुअल नीड्स हैं भी या नहीं है. आप कहीं बंच ऑफ फीचर्स तो नहीं सिर्फ बनाकर यूज़र को दे रहे हैं
क्या आपके उसके अंदर एक्चुअल कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, कोई बिजनेस प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, कोई कैपेबिलिटी बिल्ड हो रही है। तो इस एस्पेक्ट से उसको देखना है। मार्केटिंग टीम का फोकस होना चाहिए कैपेबिलिटीज के ऊपर, और आपकी जिसे आपको कहना चाहिए प्रॉब्लम सोल्यूशन स्पेस के ऊपर, और जो आपकी टेक्निकल टीम है उसका फोकस होता है टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। एंड देन ऑफ कोर्स उनके अपने सेट ऑफ रूल्स हैं, तो आपने ये देखना है कि वहां से फैंसी फीचर्स ना फ्लो कर रहे हो और यहाँ से फैंसी टेक्नोलॉजी ना फ्लो कर रही हो उस तरफ। और यू हैव टू डू जस्ट इनफ to do something really well to ensure that you're solving your customer's problem. That should be the goal of your market research, to identify those problems and see that how many people are there with the same problems and how many people are open to, you know, experiment with something. What could be the demographic, क्या ideal personas आप इसके लिए build कर सकते हैं, so on and so forth. तो ये focus आपका इसके अंदर होना चाहिए। और टीम्स का मैंने आपको बताया है कि आपने इस बात को इंश्योर करना है कि दोनों तरफ से क्या चीजें नहीं हो रही। Okay, so Faiza, last question from my side, क्योंकि audience के हमने काफी सारे questions ले लिए। Last question is, everyone who knows you, you know that you love to read books, okay? So can you recommend few good books for aspiring PM? Okay, so ये है मेरा favorite question because you are asking me for books. बहुत सारी किताबें हैं। मैंने जो किताबें कुछ पढ़ी हैं मैं उनमें से कुछ के नाम बता देती हूँ। जो अभी रिसेंटली मैंने किताब पढ़ी है उसमें एक बुक है जिसका नाम है Hooked. It's about habit forming products, so it is an excellent read. I think every product manager should read it. Then एक और बहुत अच्छी किताब है, उसका नाम है Contagious: Why Things Catch On. It's not directly related to product, but it's about how you can make a product that you know that becomes a trend. जैसे आपके पास सोशल मीडिया है और बहुत सारी चीजें, जैसे टिकटॉक हैज बिकम अ ट्रेंड, सो आप ऐसी चीजें कैसे बिल्ड कर सकते हैं। Then there is another book called The Innovator's Dilemma. Christian Clayton, I think Clayton Christensen नाम है राइटर का। वो बड़ी अच्छी किताब है। I think every product manager should read it. इसी तरह एक और किताब है The Design of Everyday Things. That's an excellent book if you want to learn about design. Then एक और किताब है, उसका नाम है आई थिंक उसका नाम है केओस मंकी। दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड बुक। तो इस तरह की कुछ किताबें हैं ऑफ कोर्स दैट आर रियली गुड। अभी मैं किताब पढ़ी हूँ, उसका नाम है अनकैनी वैली। काफ़ी ज़बरदस्त किताब है। उसमें एक खातून है जिन्होंने उन्होंने अपना मेमोir लिखा है जिसमें उन्होंने अपनी एक नॉन टेक्निकल जॉब से, शी वॉज इन पब्लिशिंग, जो बुक पब्लिशिंग के बिजनेस से उन्होंने टेक में ट्रांजिशन की और वो सिलिकॉन वैली में जाके काम कर रही थी एक डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग के स्टार्टअप में। और उसकी वो स्टोरी है, इट्स एन एक्सेलेंट वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। और शी हैज टॉक्ड अ लॉट अबाउट हाउ अ पर्सन हु इज नॉट फ्रॉम टेक बैकग्राउंड लुक्स एट द टेक इंडस्ट्री एंड उसकी क्या ऑब्जर्वेशंस हैं और वो उसको कैसे दिख रहा है। तो वो बड़ी ज़बरदस्त किताब है। तो आई थिंक ये कुछ बुक्स हैं जो आई थिंक प्रोडक्ट मैनेजर्स शुड टेक अ लुक एट। ओके, सो फायदा मेरे क्वेश्चंस तो खत्म हो गए। ऑडियंस से भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं। तो अगर आप कोई मैसेज देना चाहें तो प्लीज गो अहेड इन द एंड। नहीं, आई थिंक मैसेज तो कोई नहीं है, बस ये बात है कि इफ इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड। मुझे बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, तीन साढ़े तीन साल हुए हैं शायद ये काम करते हुए। 3 साढ़े 3 साल बहुत बड़ा लंबा अरसा नहीं होता, स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट बीइंग एन एक्सपर्ट इन अ फील्ड। एक्सपर्ट बनने के लिए बहुत सारे सालों की मेहनत रिक्वायर्ड होती है। तो कंसिस्टेंट लर्निंग, कांस्टेंट कंसिस्टेंट लर्निंग इज एक्सट्रीमली important. So if you are someone who wants to learn about it, there are a million resources. You have access to internet. You can learn from it. Strike up a conversation with someone who's in the similar role and ask them about it. जैसे हमने जब इस वेबिनार की बात की तो हमारी टीम में से बहुत सारे लोगों ने बोला कि हाँ, हम इन फ्यूचर ट्रांजिशन करना चाहते हैं, इट्स अ गुड आइडिया, वी ऑल्सो वांट टू नो हाउ टू डू इट। तो वो तो इस वेबिनार का मकसद भी यही था कि बाकी लोगों में से जो लोग भी ट्रांजिशन करना चाहते हैं उनको पता हो कि किसी और ने, मैंने ट्रांजिशन की और वो ट्रांजिशन कैसे की, क्या सीख के किया। तो आई थिंक दैट विल रियली रियली हेल्प।
Okay, so I think thank you. That's all. सारे questions भी हो गए आप ये भी हो गए. And Thank you thank you so so much. much, Faiza, for your time. Thank you, and Thank you. hopefully we are inviting you again. Definitely. Thank you so Thank you. thank you so much. Okay, good night. Good night.